میں مساجد جملہ خوش عقیدہ حاضرین اور پردے میں رہ کر سننے والی حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین سے آسماں تک ہے، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی مناسبت سے اس محفل نور کو سجایا گیا ہے، اور آج کی اس مجلس میں میرا عنوان اس ذات سے لگتا ہوا عنوان ہے جو ذات بابرکات آج پروگرام کے اختتام پر آپ کو غوث پاک کے مریدوں کے اندر شامل کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے نا، نام معلوم ہے نا، قاضی القضات فی الہند، سبحان اللہ، شہزادہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسد رضا خان قادری برکاتی رضوی مدظ اللہ العالی والنورانی، جو آج کی اس محفل کے اختتام میں قادری غلاموں میں نام لکھوانے والوں کو غوث پاک کے مریدوں کے اندر شامل کر کے ان کی قسمت کو معراج عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی چونکہ اخیر میں وہ مائک پر حضرت تشریف لائیں گے بریلی شریف سے، اور روحانی طور پر آج بھی، ابھی بھی، اس وقت بھی ان کی نظر کرم ہم سب کے اوپر ہے۔ اور آج کل پیر بہت ہیں، جیسے مارکیٹ کے اندر آج کل ہر طرح کا مال مل رہا ہے، اصلی بھی مل رہا ہے، نقلی بھی مل رہا ہے، اوریجنل بھی مل رہا ہے، ڈپلیکیٹ بھی مل رہا ہے۔ تو جب ہر چیز کے اندر اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کئی کوالٹی بن چکی ہے، تو پیروں کے اندر بھی بہت ساری کوالٹی ہو گئی ہے۔ کچھ اصلی پیر ہیں، کچھ ڈھونگی اور نقلی پیر بھی ہیں، کچھ اوریجنل پیر ہیں تو کچھ ڈپلیکیٹ پیر بھی مارکیٹ کے اندر لانچ کیے جا چکے ہیں۔ آپ جب مارکیٹ کے اندر مال لینے جاتے ہو تو پوری تلاش کرتے ہو، پہچان کرتے ہو کہ غلط مال میرے پاس میں نہ آ جائے، ڈپلیکیٹ سامان کہیں مجھے نہ مل جائے۔ تو جب آپ پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اور زیادہ پہچان کی ضرورت ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ کس پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ہمیں مرید ہونا ہے، اس لیے کہ جو پیر صحیح معنوں میں پیر نہ ہو وہ تمہاری رہبری نہیں کرے گا، بلکہ اگر تم راستے پر رہو گے تو بھی تمہیں راستے سے بھٹکا کر کے گمراہ کر دے گا۔ حضرات مکرم، بیعت کا معنی
मुरीद होने का माना क्या होता है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं बैअत का माना होता है पूरे तौर पर बिक जाना, पूरे तौर पर बिक जाना। और मुरीद होने का मतलब होता है अपना हाथ ऐसे कामिल पीर के हाथों में दे करके वादा करना कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, नेक काम करूंगा और हर तरह की बुराई से परहेज करूंगा। इसका मतलब होता है मुरीद होना। और सहाबाए किराम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैअत हुआ करते थे। कभी सहाबाए किराम ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हिजरत पर बैत की, कभी जिहाद पर बैत की, कभी सुन्नतों पर अमल की बैत की, कभी बिदअतों से परहेज करने के लिए मेरे आका की बारगाह में बैत की। औरतों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस बात पर बैत की कि वो बेहयाई से परहेज करेंगी। और मुहाजिरीन ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हाथों पर इस बात पर बैत की कि हम कभी किसी से सवाल नहीं करेंगे। अंसार ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर इस बात पर बैत की कि वो हक के ऊपर डट करके रहेंगे और हक से कभी तजावुज नहीं करेंगे। और अजीजान मुकर्रम बैअत का जो सिलसिला आज कायम है इसकी शक्ल अगरचे दूसरी है, वरना बैअत तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हुआ करती थी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है इन्नल लदीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह। ऐ महबूब जो तेरे दस्ते पाक पे बैअत कर रहे हैं वो अल्लाह ही से बैअत कर रहे हैं। ये कौन सी बैअत थी? जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम हुदैबिया से मक्कतुल मुकर्रमा में काफिरों से बात करने के लिए गए थे और हुदैबिया के अंदर ये अफवाह फैल गई, हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो बैअत रिजवान जो दरख्त के नीचे सहाबाए किराम ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैअत का जिक्र कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया। इसी तरह जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतेह किया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सफा के पहाड़ी के ऊपर बैठ गए। औरतें मेरे आका अलैहि सलाम की बारगाह में बारी बारी आने लगी और मेरे आका अलैहि सलाम से बैअत करने लगी कि वो चोरी नहीं करेंगी, वो बदकारी नहीं करेंगी, औरतों को कत्ल नहीं करेंगी, बोतान नहीं बांधेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैअत को भी कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिअनका, यानी ऐ महबूब ये जो मोमिना औरतें आपकी बारगाह में आकर के इस बात पर बैत कर रही है कि वो शिर्क नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी और बहुतान नहीं बांधेंगी, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगी। तो हजरत मुकर्रम बैअत का सिलसिला तो बहुत पहले से चला आ रहा है। मेरा रब कुरान मुकद्दस में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की बारगाह में वसीला ढूंढो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इस आयत करीमा में वसीला से मुराद है मुर्शिद, यानी तुम किसी मुर्शिद कामिल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हजरत मुकर्रम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नजरें देख रही थी कि जगह जगह लोग दुकान खोल करके बैठे हैं, जाली पीर और ढोंगी बाबा बन करके लोगों के ईमान पर डाका डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो मेरे इमाम ने पूरी तफसील के साथ में पीरे कामिल की शर्तों को बयान फरमा दिया था। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रखूंगा ताकि अपनी गुफ्तगू के आखिर के अंदर जो मैं आपको दावत देने वाला हूं वो दावत आपको समझने के अंदर आसानी रहे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं पीर के लिए 4 शर्तों का होना जरूरी है। सुन्नी सहीउल अकीदा हो, इसलिए कि जो गुमराह होगा वो खुद ही जहन्नम में जाने वाला है, तुम्हें क्या जन्नत में पहुंचाएगा। इतना इल्म रखता हो जिसके जरिए वो किताबों से शरीयत के मसाइल निकाल सकता हो, जो इल्म ना रखता हो वो खुद ही नहीं जानता है, तुम्हें क्या रायाब करेगा। आला हजरत फरमाते हैं सिलसिला मुत्तसिल हो, जब सिलसिला मुत्तसिल नहीं होगा तो वो सरकार की बारगाह तक तुम्हें कैसे पहुंचाएगा। फरमाते फासिक ना हो, जो फासिक होगा उसकी तो ताजीम जायज नहीं है और पीर की तो ताजीम की जाती है। यहां पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, आजकल पीर की शर्तें लोग जानते हैं फिर भी धोखे के अंदर पड़ जाते हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीर के लिए 4 शर्तें बयान की। क्या इन शर्तों के अंदर यह भी शर्त है कि पीर के लिए जरूरी है कि वो सैयद हो, आले रसूल हो। लेकिन आजकल कुछ लोग बैरी शरीफ से दूर करने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुरीद तो उसी पीर से होना चाहिए जो पीर सैयद हो, आले रसूल हो, हजरत फातिमा की औलाद में
میں سے ہو, حسنی ہو یا حسینی ہو, عزیزان مکرم جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر آل رسول نہیں تھے, سادات نہیں تھے, لیکن اعلی حضرت نے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرید ہونا ہوا تو حضور غوث پاک نے کسی آل رسول کا دامن نہیں پکڑا, کسی سید کا دامن نہیں پکڑا. حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے مرید ہوئے, وہ سید نہیں تھے. حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس پیر سے مرید ہوئے, حضرت ابو الحسن وہ بھی سید نہیں تھے. حضرت ابو الحسن جس پیر سے مرید ہوئے, حضرت ابو الفرا وہ بھی سید نہیں تھے. یعنی امام رضا علی سے لے کر کے حضور غوث پاک تک سلسلہ قادریہ کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں آپ سب کے نام پڑھ لو. امام رضا علی سے لے کر کے حضور غوث پاک تک سلسلہ قادریہ کے اندر کوئی بھی پیر آپ کو سید نہیں ملے گا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیر کے لیے سید ہونا ضروری ہے تو معاذ اللہ, کیا سلسلہ قادریہ صحیح سلسلہ نہیں ہے؟ اس کے اندر تو بہت سارے ایسے پیر پائے جاتے ہیں جو سید نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سلسلہ چشتیہ کے اندر حضرت مولا علی کے بعد میں حضرت حسن بصری ہے, وہ بھی سید نہیں ہے. اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مرید ہونا تھا تو کس کے در پہ گئے تھے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے در پہ گئے تھے. سید بہت تھے, آل رسول بہت تھے, سادات بہت تھے. خواجہ غریب نواز نے اپنا ہاتھ اگر دیا تو حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ میں دیا جو سید نہیں تھے. حضرت خواجہ غریب نواز نے بتا دیا پیر کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے. سلسلہ نقش بندیہ میں آپ دیکھ لیں, سلسلہ نقش بندیہ اگر شروع ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہوتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی سید رہی ہے. عزیزان مکرم یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی سید ہو اور اس کے اندر پیر کی شرطیں پائی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو آپ پیر بنائیے. لیکن یہ کہنا کہ مرید تو کسی سید سے ہونا چاہیے, یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے, یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈے سے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ کرتب ڈھونڈتے ہیں, تماشا ڈھونڈتے ہیں, کہتے کوئی کرامت دکھائے گا اس سے ہم مرید ہو جائیں گے. حضرات مکرم کسی پیر کے لیے کرامت دکھانا بھی ضروری نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے, کئی دنوں تک رہتا ہے اور پھر بعد میں جب جانے لگتا ہے حضرت جنید بغدادی نے کہا تم کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو, تم نے بتایا نہیں. وہ کہنے لگا حضور میں مرید ہونے آیا تھا, آپ سے کوئی کرامت نظر نہیں آئی, میں مایوس ہو کر کے جا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے کہا تو اتنے مہینوں تک یہاں پر رہا, بتا تو نے میرا کوئی کام شریعت کے خلاف دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کہا حضور میں نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں دیکھا ہے. حضور جنید بغدادی کہتے ہیں میری سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ میں شریعت کے اوپر عمل کرتا ہوں. لہذا تماشا مت ڈھونڈو, کہیں پر جھوٹے کرتب مت ڈھونڈو. اگر پیر ہونا ہے, اگر کسی کو مرید ہونا ہے اور پیر تلاش کرنا ہے تو یہ چار شرطیں جس پیر کے اندر پائی جائے اس پیر کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر کے آپ حضرات مرید ہو جائے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی. اسی طرح آج کل کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ دنیاوی فائدہ ڈھونڈتے ہیں, کہتے پیر وہ ہوتا ہے جو بند دکان کو چلا دے, پیر وہ ہوتا ہے جو بند فیکٹری کو چلا دے, پیر وہ ہوتا ہے جو بیمار کو شفا دے دے. میرے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیر کامل وہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی بدبخت آئے تو پیر نظر ڈال کر کے اس بدبخت کو نیک بخت بنا دیا کرتا ہے. اسی لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بدبخت آیا, تھوڑی دیر بیٹھا, آپ کے سلسلے میں داخل ہوا, اٹھ کر کے جانے لگا. لوگوں نے کہا دیکھو بدبخت جا رہا ہے, آواز آتی ہے. یہ جب آیا تو بدبخت تھا لیکن جنید بغدادی کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو اب یہ بدبخت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیک بخت بنا دیا ہے. تو حضرات مکرم آپ دنیا کا فائدہ نہ ڈھونڈے, اگر کسی سے آپ کو بیعت ہونا ہے تو یہ دیکھیں کہ آخرت کا فائدہ کہاں پہ نظر آتا ہے. عزیزان مکرم آج حالات بڑے عجیب ہو چکے ہیں. لوگ
क्या कर रहे हैं, लोगों को फांसने के लिए तरह तरह की शक्लें बना करके आ रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनना, हाथों में कड़े पहनना, 10-10 अंगूठी पहनना, झटादारी बालों को रखना और न जाने चर्च पेन पी करके अपने आप को मस्त बुलंद बताना, कैसी कैसी हरकतें लोग कर रहे हैं और लोगों की आंखों को बंद करके कैसे कैसे तमाशा दिखा रहे हैं। अजीजान मुकर्रम, इस खराब माहौल के अंदर आपको अगर पीरे कामिल का दामन चाहिए तो मैं आपको भी बताऊंगा कि इस जमाने के अंदर पीरे कामिल आपको कहां पे मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उससे पहले एक बात याद रख के, मुरीद होना, बैअत होना ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। और कोई बंदा जब मुरीद होता है, अपने पीर के हाथ में हाथ देता है, उसने अपने पीर के हाथ में हाथ दिया, ये एक जंजीर है जो जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पाक से मिल जाती है। और मेरे और कुरान मुकद्दस में आप देखें रब क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ में हो जाओ। यानी बंदा जब किसी पीरे कामिल से बैअत हो जाता है तो वो सच्चों के साथ में शामिल हो जाता है। अब आप पूछेंगे मुरीद होने से फायदा क्या होता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुरीद होने का फायदा यह है कि हमारा सिलसिला हुजूर से जुड़ जाता है। और जो नजर वाले हैं वो फायदा दुनिया में देखते हैं, और जिनके पास नजर नहीं है अगर उनका सिलसिला सलामत है तो फिर वो मौत के वक्त में उसका फायदा देखेंगे, कब्र में उसका फायदा देखेंगे, हश्र में उसका फायदा देखेंगे, पुल सिरात पे उसका फायदा देखेंगे। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, औलमाए रब्बानीन, औलिया किराम और पीराने कामिल अपने मुरीदों की, अपने शागिर्दों की, अपने पैरोकारों की शफाअत कल क़यामत के दिन करेंगे। वो कब्र में भी काम आएंगे, नज़ा में भी काम आएंगे, पुल सिरात पे भी काम आएंगे, और जब नामा आमाल खोलने लगेंगे तब भी काम आएंगे। पीरे कामिल के दामन से वाबस्ता होने के बाद में बंदे को क्या फायदा मिलता है? और तो बहुत सारे फायदे हैं। इस जमाने के अंदर मैं ये कहता हूं, अगर कोई किसी पीरे कामिल से मुरीद हो जाए, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है वहाबी देवबंदी वगैरह गुमराहों से बच करके उसका ईमान और अकीदा महफूज हो जाता है। ये जमाने के अंदर पीर से मुरीद होने का सबसे बड़ा फायदा है। और हजरात मुकर्रम, आप कहेंगे हम मुरीद नहीं हुए हैं, अब हमको मुरीद होना है, हम किससे मुरीद हो? तो आप देखेंगे हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे पीर मिलेंगे। जिस पीर के अंदर ये चारों शर्तें पाई जाती है, उनमें से किसी भी पीर कामिल से आप मुरीद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हजरत आप बताइए हम किससे मुरीद हो जाए, तो मेरा मशवरा क्या है उसे मैं दलाइल की रोशनी में आपके सामने रखना चाहूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खानकाए महरिया से मुरीद थे। लोग आपकी बारगाह में आते थे, आने के बाद में अर्ज करते थे हुजूर हमें आप मुरीद कर ले। आला हजरत फरमाते थे मैं नहीं मुरीद करूंगा, जाओ महरिया मुताहरा चले जाओ। कई लोगों को आपने महरिया मुताहरा भेज दिया, खुद आप बैत नहीं करते थे। एक दिन एक मर्तबा रात में सोए हैं, ख्वाब में आपके पीरो मुर्शिद सैयदी आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और कहते अहमद रजा तुम मुरीद क्यों नहीं करते हो, हमारे सिलसिले को तंग क्यों करते हो, लोगों को मुरीद करो और सिलसिले को फरोग दो। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब के अंदर हुजूर आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये हुक्म सुना, फिर आपने मुरीद करना शुरू कर दिया। फिर बाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर गली गली में, शहर शहर में, बस्ती बस्ती में, करिया करिया के अंदर आला हजरत के मुरीदीन नजर आते रहे और रिजवियों की एक फसल बाहर आ गई। आला हजरत का जब विसाल हुआ, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मसनद इरशाद पर जलवा अफरोज हुए तो लोग दूर दूर से आते थे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में और आपकी बारगाह में हाजिर होकर के बैत होते थे और रज़वी गुलामों में नाम लिखा करके वो फिर कादरी पट्टा अपने गले के अंदर डाल लिया करते थे। जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का इंतकाल हुआ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मसनद इरशाद पर बैठे, फिर आपकी बारगाह में मुरीद होने वालों का तांता बन गया। कोई किसी स्टेट से आ रहा है, कोई किसी शहर से आ रहा है, लाखों की तादाद में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के दरे दौलत पर लोग आकर के मुरीद होने लगे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जब इंतकाल हो गया, उसके बाद में क्या हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो मैंने भी देखा है और आपने भी देखा है। जिसको भी मुरीद होना था, पीर तो बहुत सारे थे, उसमें से सच्चे पीर भी बहुत थे, लेकिन अगर नजर उठती थी तो कहीं और नहीं उठती थी।
थी, सबकी नजरें अगर उड़ती थी तो हुजूर ताजुश शरिया की तरफ उड़ती थी। सब कहते थे जितने पीर है सच्चे पीर है, सब हमारे सरों के ताज है, लेकिन अगर हम अपना सर अगर किसी के कदमों में रखेंगे तो वो हुजूर ताजुश शरिया की जात होगी। और फिर हुजूर ताजुश शरिया के जो सिलसिले के अंदर दाखिल होने वालों की जो आपने बहार देखी है वो तो नक्शा ही अलग है। उसको जब बयान किया जाता है ना तो फिर आदमी महसूस करने लगता है, ऐसा लगता था महफिल के अंदर नूर का टुकड़ा उतर आया है। हुजूर ताजुश शरिया जब तशरीफ लाते थे ऐसा लगता था जैसे नूर के काफिले आपके साथ में आ गए हैं। हुजूर ताजुश शरिया जब तक ज़ाहिरी हयात में रहे लोग आपसे जुड़ करके सिलसिला कादरिया के अंदर मुरीद होते रहे, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हो गया तो लोगों के जहन के अंदर ये ख्याल था कि हुजूर ताजुश शरिया तो चले गए, वो नूर का टुकड़ा चला गया, वो नूरानी काफिले को लेकर के चलने वाला मीरे कारवा चला गया। अब हम किसके हाथों में हाथ दे करके अपने गले के अंदर कादरी पट्टा डालेंगे और हम किसके हाथों में हाथ देकर गौसे पाक के मुरीदों में अपना नाम लिखवाएंगे। लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं था। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह और नूरानियत का एक मुकद्दस काफिला हुजूर कायदे मिल्लत काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती असद रज़ा खां मद्दसिल आली व नूरानी को अता करके गए। ये लोगों को उस वक्त पता चला जब मंजर आम पर हुजूर कायदे मिल्लत की जाते बाबरकत आती है। अब यहां पर अगर मैं ये जुमला कह करके निकल जाऊं तो आप सोचेंगे मैंने मोहब्बत के अंदर कह दिया है, इसमें मैं थोड़ी तफसील करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई मुरीद होना चाहता है तो आला हजरत सरकार ने जो पीर की शर्तें बताई है उन शर्तों को देखता है। मैं कहता हूं हुजूर कायदे मिल्लत की जात को एक तरफ रखो और उसके बाद में जो पीर के अंदर शर्तें जरूरी है उन शर्तों को एक तरफ रखो। सबसे पहली शर्त क्या बताई थी हुजूर आला हजरत सरकार ने कि सुन्नी सही अकीदा हो। मैं कहता हूं आला हजरत सरकार बहुत पहले कह के चले गए, मैंने इश्क रसूल और गुस्ताखों की नफरत अपने बच्चों को भुट्टी के अंदर पिला दी है। और हुजूर कायदे मिल्लत खानदान आला हजरत के एक फर्द है। हुजूर कायदे मिल्लत का अकीदा तो मजबूत है ही, हमने देखा है जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाता है वो भी वहाबिया से नफरत करने लग जाता है। अल्लाह अकबर। तो सुन्नी सही अकीदा हो, ये पहली शर्त है। और उसके बाद में दूसरी शर्त है उसके पास में इल्म हो। मैं कहता हूं जिसने इल्म का सागर जो हुजूर ताजुश शरिया थे, इल्म के सागर हुजूर ताजुश शरिया से इल्म के जाम पिए हो, उस हुजूर कायदे मिल्लत के पास में कितना इल्म होगा ये वही जानता है जिसने इल्मी अंदाज के अंदर हुजूर कायदे मिल्लत से गुफ्तगू की हो। ये शर्त भी हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर बड़ी तमन्नाई के साथ में पाई जाती है। और उसके बाद में तीसरी शर्त को आप देखेंगे, तीसरी शर्त क्या है, उसका सिलसिला मुत्तसिल हो। मैं कहता हूं हुजूर कायदे मिल्लत के हाथों में हाथ देकर के आप देख ले, आपकी जबान से ये जुमला निकलता हुआ नजर आएगा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरतुल्लाह के वास्ते। ये सिलसिला ऐसा मुत्तसिल है कि हुजूर आला हजरत के पीरो मुर्शिद ने खुद कह दिया मेरे सिलसिले में लोगों को मुरीद करके इस सिलसिले को तुम फरोग दो। और उसके बाद में आखिरी जो चौथी शर्त है कि वो फासिक ना हो, गुनाह कबीरा से बचता हो। मैं कहता हूं नजरें उठा के देख लो, नजरें उठा के देख लो, इस जमाने में गुनाह कबीरा से बचने वाले जो पीर है उनमें हुजूर कायदे मिल्लत का कितना बड़ा मकाम है। आप कभी वीडियोग्राफी के अंदर हुजूर कायदे मिल्लत को मुलव्विस नहीं देखेंगे, तस्वीर कशी में नहीं देखेंगे। वहाबिया के साथ में आप खाना खाने के लिए जो जवाज की राह तलाश करते हैं उनमें कायदे मिल्लत आपको नजर नहीं आएंगे। बद मजहबों के जबिया को जो हलाल करना चाहते हैं उनमें आपको कायदे मिल्लत नजर नहीं आएंगे। और ख्वातीन के साथ में जो मेला और हुजूम करते हैं उनमें कायदे मिल्लत आपको नजर नहीं आएंगे। मैं कहता हूं जितने भी गुनाह कबीरा है उनकी फहरिस्त बना करके देख लो और उसके बाद में कायदे मिल्लत की जात को देखो। हमने कहा था ना मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई हजरत अख्तर रजा को छोड़कर इस जमाने के अंदर हम कहते हैं तकवाए ताजुश शरिया का जलवा अगर देखना हो तो हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर आपको आला हजरत सरकार, मुफ्ती आजम सरकार, हुज्जतुल इस्लाम सरकार और हुजूर ताजुश शरिया का तकवा आपको पूरे तौर पर नजर आएगा। अजीजाने मुकर्रम, एक बात मैं और बताऊं, अच्छे पीर की पहचान क्या है। एक बार कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अच्छों की पहचान बताऊं? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बताइए। मेरे आका ने फरमाया, इज़ा रहू ज़ुकिर अल्लाह, उनको जब देखो तो खुदा याद आ जाए। आपने कायद मिल्लत को देखा है? अगर देखा है तो आप गवाही देंगे, मैंने भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कायद मिल्लत का चेहरा देखते दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। बेशक बेशक हुजूर कायद मिल्लत के अंदर ये बात भी बदर्जा अतम पाई जाती है। आपने देखा होगा कितने लोग हैं गुनहगार आए थे, कायद मिल्लत का चेहरा देख करके नेक बन गए। कितने गैर मुस्लिमों ने आपका चेहरा देख करके कलमा पढ़ लिया। कितने वहाबिया दयाबना ने आपका चेहरा देख करके गुमराहियत से तौबा कर ली। पीर का मतलब क्या होता है कि जब बंदा किसी से मुरीद हो, अगर गुनहगार था तो नेक बन जाए, और नेक था तो पहले से ज्यादा नेक बन जाए। हुजूर कायद मिल्लत की बारगाह में गुनहगार आते तो नेक बन करके जाते हैं, और नेक आते हैं और ज्यादा नेक बन करके जाते हैं। आज मुझे बताओ तस्वीर कशी से, वीडियोग्राफी से बचने वाले किसके मुरीद है? वहाबियों से दूर रहने वाले किसके मुरीद है? कवाली ढोल ताशा से परहेज करने वाले किसके मुरीद है? बद मजहबों के जबिया से बच करके अपने हाथ से लिबा करके खाने वाले किसके मुरीद है? और मैं कहता हूं आज फितनों के इस दौर के अंदर तरह तरह के जो तमाशों में जो मुब्तला है, उन तमाशों को छोड़ करके शरीयत पे गामजन होने वाले किसके मुरीद है? मुरीदों को देख करके पता चलता है कि पीर का मर्तबा कितना बुलंद है। और हजरात मुकर्रम, एक बात मैं और यहां पर भी अर्ज करना चाहूंगा, इससे पहले भी मैंने बताई है। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह अल इब्रीज शरीफ के अंदर जो आपके मलफूजात को जमा किया गया है, उसमें लिखा गया है, उसका खुलासा मैं आपको बताता हूं। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब किसी वली कामिल का इंतकाल होता है, अल्लाह का वली जब दुनिया से चला जाता है, उस वली की जो रूहानियत होती है, उस वली का जो सिर होता है, उसको हज़रत जिब्रील अमीन संभाल करके रखते हैं। उसका नाइब जब उसके लायक हो जाता है तो उस वली कामिल की रूहानियत और उसका सिर उसके जानशीन को दे देते हैं। लेकिन अगर वली के इंतकाल के बाद में, उस कुतुब के इंतकाल के बाद में उसका जानशीन अगर मजबूत होता है, अगर उस मनसब के लायक होता है, तो ये मर्तबा और ये ओहदा हजरत जिब्रील के पास में महफूज नहीं रहता है। उधर अल्लाह का वली इंतकाल करता है और उधर वो रूहानियत उठा करके उनके जानशीन को दे दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरा अपना फैसला नहीं है, मैं आपसे फैसला करवाना चाहता हूं। हुजूर कायद मिल्लत को आपने हुजूर ताजुल शरिया के जमाने में भी देखा था और हुजूर ताजुल शरिया के विसाल के बाद भी देखा था। आपने क्या देखा था? वो देखा था, मैं बताता हूं। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ है जुमा के दिन मगरिब की अजान के वक्त में, और हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में मैं पहुंचा हूं जुमेरात के दिन असर के वक्त में। असर से लेकर मगरिब तक हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में हॉस्पिटल के अंदर में रहा। हजरत को डिस्चार्ज किया गया, मैं हजरत के साथ में बाहर आया, मैंने हुजूर ताजुल शरिया का चेहरा भी देखा। लोग जब बुढ़ापे में चले जाते हैं तो बदन कमजोर होता है, तो चेहरा मुरझा जाता है। कसम खुदा की कहता हूं, 24 घंटा पहले इंतकाल से मैंने देखा था, रोजाना जितना चमकते थे आखिरी वक्त में उससे ज्यादा चमकदार नजर आ रहे थे। हुजूर ताजुल शरिया को जब गाड़ी में बिठा दिया गया, 24 घंटे के बाद में हुजूर ताजुल शरिया का विसाल हो गया। जब हुजूर ताजुल शरिया का विसाल हुआ तो हमने हुजूर कायद मिल्लत को देखा। मैंने कहा, हमारे साथियों ने कहा, बहुत सारे उलमा ने कहा कि हुजूर कायद मिल्लत को देख करके ऐसा लग रहा था कि कायद मिल्लत नहीं बल्कि ताजुल शरिया नजर आ रहे हैं। तो मुझे हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग की वो बात याद आई, जब अल्लाह का वली इंतकाल करता है, उसकी रूहानियत, उसके जानशीन अगर उसके लेने के लायक होते हैं तो उनकी रूहानियत को महफूज नहीं रखा जाता है। इंतकाल के फौरन बाद में उसके जानशीन को वो रूहानियत दे दी जाती है। तो मेरे दिल से आवाज आई, या हुजूर ताजुल शरिया, आप दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन आप जिसको जानशीन बना के जा रहे हैं वो वाकई आपके जानशीन बनने के लायक है। इधर आपका इंतकाल हुआ, उधर उनके चेहरे पे आपकी रूहानियत का जलवा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। और मैंने बुजुर्ग का कौल पढ़ा था, अगर अल्लाह का वली 5 मिनट के लिए कहीं पर बैठ जाए ना, वहां पे इतना नूर होता है उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और अल्लाह का वली जहां पे रहता है वहां पे कितनी रूहानियत होगी। मैं बात समझाने के लिए एक बात आपको एक वाकया सुनाना चाहूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, गारे सौर में पहुंचे। गारे सौर में कितने दिन रहे? 3 दिन रुके। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम काफिरों के तलवार के घेरे को तोड़ करके चले आए, काफिर देख नहीं पाए, तो हुजूर गार में 3 दिन क्या कर रहे थे? मेरे आका चाहते
जाते, एक मुट्ठी उछाल देते और गार से निकल करके चले जाते, काफी नहीं देख पाते। लेकिन जब मैंने तारीख पढ़ी, हजरत सिद्दीक अकबर का दौर पड़ा, तब मुझे समझ में आया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हो सकता है इसलिए 3 दिन गारे सौर के अंदर कयाम किया हो, ताकि मेरे बाद में जो फितने पैदा होंगे उन फितनों का मुकाबला करने के लिए एक अजीम जात की जरूरत है। मेरे आका ने गार के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को वो सब कुछ पिला दिया जो फितनों का मुकाबला करने के लिए जरूरत थी। जब गार से निकल करके हजरत सिद्दीक अकबर के साथ में मेरे आका जब गए हैं मकाम कुबा के अंदर, जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो आए और हजरत सिद्दीक अकबर को देखने लगे। सिद्दीक अकबर समझ गए कि लोग मुझको गलत समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं खादिम नहीं हूं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक पर्दे से पर्दा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे पाक के ऊपर तान दिया और बता दिया मैं गुलाम हूं, आका इधर तशरीफ फरमाए। बात समझ में नहीं आती, आका तो पहचान लिया जाता है, लोगों को शुबा कैसे हो गया? शुबा इसलिए हो गया कि 3 दिन तक गार में मेरे आका ने जो रूहानियत पिलाई थी हजरत सिद्दीक अकबर को, तो फिर पता लगाना मुश्किल हो गया था कि ये नूर वाली जात कौन सी है। हजरत सिद्दीक अकबर में मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत का जलवा नजर आ रहा था। हजरत मुकर्रम, मैं ये तशबीह नहीं दे रहा हूं, बात समझाने के लिए बात बता रहा हूं। जब मेरे आका 3 दिन तक गार के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को इतनी रूहानियत अता फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का सदका गुलामों को भी अता किया है। इसीलिए हमने देखा है हुजूर के गुलाम भी जब किसी पे तवज्जो डालते हैं तो उसका भी नक्शा बदल देते हैं। दिल्ली की सरजमीन पे चले जाएं, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का मजार है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, रात का वक्त है, मेहमान आ गए, परेशान थे, मैं खाना कहां से खिलाऊं? नान भाई आया, कहने लगा हुजूर मैं खाना बनाता हूं, खाना बना के लाया, सारे मेहमानों को खिला दिया। हजरत बाकी बिल्ला खुश हो गए, कहा जो मांगना है मांग ले। कहा हुजूर आप ऐसा करें जैसे आप हैं वैसा ही मुझको बना दे। वो पढ़ा लिखा था नहीं, समझ नहीं पाया, कहने लगा हुजूर जैसे आप हैं वैसा ही मुझको बना दे। आपने कहा कुछ और मांगो, कहा नहीं हुजूर मैं तो यही मांगता हूं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का दरिया रहमत जोश में आया, आपने सीने से उस रोटी बनाने वाले को लगाया और लगा करके रूहानियत को उसके सीने में मुंतकिल कर दिया। और रात के बाद में सुबह के वक्त में जब खानका से निकला तो लोगों ने कहा देखो ख्वाजा बाकी बिल्ला आ गए हैं। अगर अल्लाह का वली अपने सीने से एक बार किसी को लगा दे तो अपने जैसा बना देता है। सारी जिंदगी सफर के अंदर, आखिरी उम्र के अंदर हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक साहब हुजूर ताजुश शरिया के साथ में रहते थे, लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया के विसाल को 1 साल बाकी रह गया, हुजूर मुफ्ती आशिक साहब अपने कामों में मसरूफ रह गए। हजरत के पास में ज्यादा वक्त में हुजूर कायदे मिल्लत रहते थे, दिन में भी साथ में है, दिगर औकात में भी साथ में है, रात में भी साथ में सोते हैं। मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया के विसाल के बाद में मुझे पता चला ये 1 साल तक हजरत बाहर निकलना बंद कर दिए और कमरे के अंदर कायदे मिल्लत को साल भर साथ में रखा। आखिर क्यों रखा ये उस दिन पता चला जिस दिन हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हुआ। तब लोग कह रहे थे ये ताजुश शरिया नजर आ रहे हैं, तो मेरे दिल से आवाज आई वो साल भर तक जो पिलाया था वो जलवा आज हुजूर ताजुश शरिया की शक्ल के अंदर नजर आ रहा है। अल्लाह मुकर्रम वो अजीम जात वो पीरे कामिल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम गुरबा अहले सुन्नत के ऊपर अपनी तवज्जो और अपनी नजर करम किए हुए हैं। और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि आज हुजूर कायदे मिल्लत इस महफिल के अंदर हाजिर होने वाले जो अपने गले के अंदर कादरी पट्टा डालने वाले हैं उनको अपने सिलसिले के अंदर दाखिल फरमाए। अल्लाह वालों की तवज्जो भी क्या हुआ करती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि कोई काफ के ऊपर एक परिंदा रहता है, जब सर्दी का मौसम आता है वो परिंदा कई गर्म इलाके में चला जाता है, उसके अंडे कोई काफ में रह जाते हैं और वहीं से वो अंडे पे तवज्जो करता है। जब सर्दी खत्म हो जाती है वो परिंदा वापिस कोई काफ पे जाता है तो अंडे से बच्चे निकल आते हैं। मैं कहता हूं एक परिंदा अगर कई किलोमीटर दूर चला जाए तो अंडों पे तवज्जो करे तो अंडों से बच्चे निकल सकते हैं। तो अगर पीरे कामिल अपने मुरीद पे नजर करे तो मुरीद को क्या से क्या बना सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मुकर्रम ये तो बड़ी किस्मत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे पीर अता फरमाए हैं। मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामी शम तमरेज नबाशद, यानी जब हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत शम तबरेज के मुरीद नहीं हुए थे, गुलाम नहीं हुए थे तो बात अलग थी, लेकिन जब शम तमरेज के मुरीद हो गए तो इसके
उसके बाद में नक्शा ही बदल गया। पीर की जरूरत किसको नहीं पड़ती है? याद करो इमाम राजी जो अपने जमाने के जबरदस्त आलिम थे, इंतकाल का जब वक्त आया ना, शैतान ने आकर के कहा था अल्लाह के एक होने पे दलील दो। आप दलील देते रहे, वो दलीलों को काटता रहा। 360 दलीलें दी, सारी दलीलों को काट दिया, परेशान हुए। बहुत दूर आपके पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा वजू बना रहे थे, अपना लोटा वहीं से उछाल के कहा तू कह क्यों नहीं देता, मैंने खुदा को बगैर दलील के एक माना है। आपने ये बात कही और ईमान पे खात्मा हो गया। अगर पीर कामिल हो तो मौत के वक्त में ईमान बचाने आता है, शैतान से हिफाजत करता है। और हमारा पीर कौन है? हमारा पीर वो है जिसने हमें अपना नहीं गौसे पाक का गुलाम बनाया है। कौन गौसे पाक? हजरत शेख अब्दुल जब्बार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी माँ यानी गौसे पाक की अहलिया मोहतरमा जब अंधेरे में जाती थी तो अंधेरे में उजाला ही उजाला हो जाता था। एक बार गौसे पाक तशरीफ ले गए, आपने फरमाया कि ये कहने लगी कि मैं नूर देखती हूँ। गौसे पाक ने फरमाया ये नूर नहीं है, ये शैतान का फरेब है। सरकार गौसे पाक ने उस फरेब को दूर किया और उसके बाद में अपनी तरफ से नूर दिया और आखिर का जुमला कहा मैं अपने गुलामों के साथ में यही करता हूँ। यानी मेरे गुलामों को जब मुरीद परेशान, जब मेरे गुलामों को, मेरे मुरीदों को जब शैतान परेशान करता है तो मैं इसी तरह उनकी मदद के लिए आता हूँ। फरमाया मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। आज अगर ये निस्बत कायम करनी है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार कीजिए, थोड़ी देर के बाद में ये निस्बत कादरी बांटने के लिए ऑनलाइन हुजूर कायद मिल्लत तशरीफ लाएंगे। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अजीजान मुकर्रम, आज के फितनों के इस दौर के अंदर वैसे तो मुरीद होना फर्ज और वाजिब नहीं, लेकिन मैं कहता हूं जरूरी और लाजिम हो गया, इसलिए कि अगर आप किसी सही पीर से मुरीद नहीं होंगे तो किसी फरेबी और धोखेबाज के चंगुल में गिरफ्तार हो जाएंगे, जो न सुन्नी होगा न जो है वो बाअमल आलिम होगा, वो तुम्हें गुमराह करके रख देगा। अपना ईमान बचाना है, अपना अकीदा बचाना है तो आला हजरत सरकार का सिलसिला जो बिल्कुल मुत्तसिल होकर के वैसे पाक तक पहुंचाए उस सिलसिले में दाखिल हो जाए। और किससे आप मुरीद होंगे? हुजूर कायद मिल्लत से। किससे मुरीद होंगे? हुजूर कायद मिल्लत से। इंशाअल्लाह अगर आपने इस सिलसिले को मजबूती से साम लिया, यहां भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। हमेशा यही दुआ करते रहे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरी अब्दुल कादरी कुदरत के वास्ते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।